So last time we have seen a different kind of expression in mathematics. So we have seen the universal statement जिनमें भी for all, for every या फिर for each ऐसे टर्म होते हैं, उनको हम बोलते हैं यूनिवर्सल स्टेटमेंट. Then we have seen the existential statement. There exists for some or for at least one ऐसे टर्मिनोलॉजी जिसमें होते हैं उसको बोलते हैं existential statement. And then we have seen the statement where condition is imposed, the statement in the form of if else, or you can say if and then. That kind of statement is known as conditional statement. Then we have also seen universal conditional, where first part is universal, second part is conditional. We have also seen वो जो universal conditional statement होता है उसको कैसे सिर्फ यूनिवर्सल में भी लिख सकते हैं या सिर्फ कंडीशनल में भी कैसे लिख सकते हैं, दैट वी हैव सीन. देन we have also seen the universal existential and existential universal दोनों टाइप के स्टेटमेंट देखे हैं. So now we are in the position to determine set. तो सेट तो आप सभी ने पढ़ा होगा, yes or no? Yes, sir. Yes. Can Yes, you yes. define what is set? सेट क्या होता है? What is set? Anyone? Group of numbers which does not repeat, sir. Group of numbers, sir. I think. और कोई? A group of elements which fall in a particular category. Group of element which fall in a particular category. और कोई? A well-defined हाँ. well-defined group of elements in bus. Okay. Someone has said a very interesting thing about the set, that is well defined. So set is, as here it is written, it is a collection of elements. So collection of elements, कोई भी elements चलेंगे क्या, नहीं चलेंगे. So what does this mean? Well definedness is very very important. Why I am explaining to you. So let me define this set A. I will define this as set of letters A, B, C, D, E, which is the letters in English alphabet. So when I say it is first 5 letters in English alphabets, you can draw this particular set, right? मैं भी यही लिखूंगा, कोई और मुझे बोलेगा तो भी यही लिखेगा. सपोज मैं ऐसा स्टेटमेंट बोलता हूं कि let it be the collection of all smart people in the Kurla. Collection of all smart people in the Kurla. तो अगर मेरे को ये सेट डिफाइन करना है तो वो मेरे हिसाब से डिफाइन होगा. मतलब मुझे लगेगा कि आकाश स्मार्ट है और वो कुर्ला में रहता है तो आकाश को सेट में इंक्लूड करो. कोई और बोलेगा आकाश स्मार्ट नहीं है तो उसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए. तो यहाँ पे क्या हो गया, एम्बिग्यूटी आ गया. तो इसमें क्या है, वेल डिफाइननेस मिसिंग है. तो व्हेन आई राइट द सेट लाइक दिस, लेट्स से बी इज इक्वल टू सेट ऑफ all smart people in Kurla. तो जब मैं ये सेट लिखता हूं, ऐसा कोई सेट लिखता हूं, just wait a minute.
set of all smart people in, say, Kurla. So when I write this kind of thing or collection of all smart people, it depends on who is specifying the set. तो जो स्पेसिफाई करेगा उसके हिसाब से अगर वो पर्सन स्मार्ट है तो वो सेट में इंक्लूड करेगा, अगर वो पर्सन उसके हिसाब से स्मार्ट नहीं है तो वो इंक्लूड नहीं करेगा. So when I write this kind of set, this is not a set, whereas first one is a set, क्योंकि उसमें जो एलिमेंट्स है वो वेल डिफाइंड है. तो जिसने भी कहा है वो बहुत सही कहा है कि इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. सो फर्स्टली ये जो सेट का जो टर्म है वो जॉर्ज कैंटर ने मैथमेटिक्स में लाया था. तो दिस टर्म ऑफ सेट इज introduced by George Cantor. Then he has defined the set as simply as a collection of elements, but later on this particular wording is added in the set. It should be a well defined collection of elements. कोई भी collection नहीं चलेगा. We have to have a proper definition. मतलब मुझे जो definition include करनी है वही definition आपको भी include होनी चाहिए. मतलब उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि सेट ऑफ ऑल स्मार्ट पीपल और सेट ऑफ ऑल स्कॉलर पीपल. क्योंकि मेरे हिसाब से जो स्कॉलर है वो दूसरे के हिसाब से स्कॉलर होगा ऐसा जरूरी नहीं है. हर एक का परसेप्शन अलग अलग होता है. So we want this well defined to be there. Then the generally the set का जो denotation है वो generally S letter से denote करते हैं और any capital letters. You will have to define the set, we will use capital letter A, B, C, D, E, F, G, and we will use small letters small a, B, C for elements in the set. Understood? So whenever we write the small letter, it is for the elements in the set, and when we write capital letters to denote the set. Understood? Next, Yes, sir. Yeah. this symbol is very, very important. X belongs to S. When we write like this, let me delete all this. Consider this. What does this symbol means? X belongs to S means X is element of set S. X does not belongs to S. We denote it by like this. What does this mean? X is not a element of S. So is this clear? This symbol is called as Yes. belongs to symbol. And we read it as X belongs to S. Here we read it as X does not belongs to S. Okay. So these two notation, X belongs to S and X does not belongs to S. Next, there are two types of methods to denote the set. First is called set roster method. What is set roster method? The set roster method is the notation where we write the set in the pair of braces. We write the set in the pair of braces. And we denote all the element of the set. For example, A is equal to 1, 2, 3, okay, 4, 5. We write all the elements separated by comma without repeating the element. The order is not important. I can write the same set like this: 3, 1, 4, 5, 2. This is the same set A because
The order in which elements are written is not important. Okay, is this clear? पहले मैंने 3 लिखा, बाद में 1 लिखा तो भी चलेगा. I can write the same set as like this, say 1, 2, 1, 3, 4, 5. This represent the same set क्योंकि repetition ही is not considered in the set. Okay, we have to write element only once. अगर 2 बार भी लिखा तो भी हम लोग उसको एक ही बार काउंट करेंगे सेट में. Okay, so these 3 are representation of the same set A. Okay, so what is set rooster? Set rooster method use set rooster का स्पेलिंग गलत लिखा है मैंने. Set rooster method use writing all the elements in pair of braces. Okay, now what does here mention? अगर अपने को लार्ज सेट लिखना है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 1 2 3 डॉट 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 का मतलब क्या होता है? एनीवन? कंटिन्यूटी. So on. It is meaning means so on and so forth. 1 2 3 up to 100. मतलब ये सेट किसका है? Collection of all the natural number from 1 to 100. Okay, then if I write without specifying this last number, यहाँ पे क्या किया है? 1 2 3 and last number specify किया है. अगर मैं last number specify नहीं करता हूँ, then you can write this 1 2 3 up to infinity. मतलब it goes on and on. If you do not specify the last number, it will go on and on. Understood this two notation? This particular dot 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 is called as ellipsis, and this is read as and so forth. मतलब मैं when I write this like this, 1 2 3 ellipsis 100 means 1 2 3 and so forth up to 100. If I write this 1 2 dot 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 without ending this particular last number अगर नहीं लिखा है तो it will collect all the natural numbers. Okay, so this is the notation dot 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 in set rooster method. तो इसके ऊपर कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं? तो लेट अस सी. मेरे पास असाइनमेंट होगा आपका लास्ट ईयर का. Consider this first quotation. Use the set builder notation to write each of the following set. तो इसको सेट बिल्डर नोटेशन में दिया गया है, आपको इसको सेट रोस्टर फॉर्म में लिखना है. फर्स्ट सेट कैसे लिखोगे आप? How you will write first set? N belongs to set of what does Z represent? Integer. और n का वैल्यू क्या रहेगा? -1/k. तो इसमें 2 ही एलिमेंट होंगे. कौन से 2 एलिमेंट होंगे इसमें? -1 and +1. There are no other element possible क्योंकि -1/1 क्या होता है? -1. -1/2 किया तो मेरे को क्या मिलेगा? +1. देन -1/3 किया तो मुझे क्या मिलेगा? अगेन -1. -1/4 किया तो मुझे क्या मिलेगा? +1. तो ओनली दिस 2 एलिमेंट्स आर पॉसिबल. तो ये जो सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा है सेट, उसको मैं सेट रूस्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा? ओनली -1 and 1. What about the second one? M is equal to 1 plus -1/i. तो एक I for some I belongs to Z. For some I belongs to Z अगर लिखा गया है ना, तो इसमें I का वैल्यू पुट करो. तो I for example I can write -1/1.
तो i का वैल्यू अगर मैंने पुट किया तो मेरे को क्या मिलेगा 1 - 1 विच इज इक्वल टू 0। i का वैल्यू 2 पुट किया तो क्या मिलेगा 1 प्लस -1 स्क्वायर। -1 स्क्वायर क्या होता है +1 होता है। तो -1 स्क्वायर इज +1। 1 + 1 क्या मिलेगा 2। 1 + -1/3 क्या मिलेगा 0. 1 प्लस in the bracket -1/3 is -1, 1 - 1 is 0. So only two elements are there. कौन से दो एलिमेंट मिलेंगे 0 and 2. Okay, so like that you can write the set. So पहला सेट क्या हुआ -1 and 1, सेकेंड सेट क्या हुआ 0 and 2। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे निगेटिव नंबर्स पुट नहीं कर सकते, क्योंकि इंटीजर है तो आप निगेटिव नंबर भी पुट कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल इफ आई पुट निगेटिव नंबर व्हाट विल हैपन -1/-1, I can write this as 1 plus 1 upon -1/1. So when we have the negative power, it will go in denominator to become it positive power. Understood? तो अगर निगेटिव पावर आपने कहीं रखा है, पॉजिटिव पावर में तो ये सिंपल है। ओके, पॉजिटिव पावर इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट, बट निगेटिव पावर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आई विल जस्ट इरेज दिस ऑल एंड आई विल कैलकुलेट 1 to नेगेटिव पावर। कोई भी एक मुझे बताओ आपका फेवरेट नंबर नेगेटिव। I will take -5. What will happen? This -1/-5 will given into the denominator -1/5। उसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करो। -1/5 -1 को अगर मैं 5 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा -1, 1 upon -1। So you can keep this sign to the numerator 1 - 1, you will get answer to be equal to 0। तो ये आपको कौन से दो एलिमेंट मिलेंगे 0 and 2, only 2 elements in set T। What about set U? आप मुझे बोलो, अभी मैं नहीं बताऊंगा। 0 to 5। बोथ इंक्लूड करना है नहीं करना है करना है इंक्लूड करना है 0 1 2 3 4 and 5। What about this set? S belongs to Z, S strictly greater than 2 and S less than 3। What about this set V? V का डेसिमल आ सकता है सर? नहीं, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है 0 एम्प्टी सेट है 3। There is no integer between 2 and 3। So एम्प्टी there सेट is no integer between 2 and 3, so I can write this set V is equal to empty set। You can also write in the empty braces like this। Okay, empty set का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? It is a Greek letter phi, या फिर आपको empty braces में आपको लिखना है। Okay, what about W? -2 -1 0 0 1 1। नहीं, आप देखो जरा नंबर लाइन पे इमेजिन करो 0 1 2 आपको रहेगा सर। टी कैसे चाहिए 2 के आगे चाहिए और साथ ही साथ में 2 के आगे चाहिए या फिर और लिखा है और t इज लेस देन -3। मतलब लेस देन -3 मतलब -3 के लेफ्ट साइड में चाहिए। So that means I can write this set as -4 -5 ... union with t greater than 2। मतलब क्या 3 4 ... समझे आपको? क्योंकि और है आइदर t एक कोई तो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, t 2 से बड़ा होना चाहिए इसलिए 3 4 5 6 हम लिख सकते हैं, और t -3 से छोटा होना चाहिए मतलब हम लोग -4 -5 -6 ऐसे उस साइड पे निगेटिव इंफिनिटी साइड के भी लिख सकते हैं। तो दो सेट, ये W सेट कैसे बनेगा? यूनियन ऑफ टू सेट
-4 -5 dot 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 union 3 4 dot dot dot. Understood this set W? तो ये पांचवा कैसे डिवाइड होंगे? हर एक करेक्ट आंसर के लिए एक एक मार्क. तो एस का आपने करेक्ट लिखा 1 मार्क, टी का करेक्ट लिखा 2 3 4 5. तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन जो मैं असाइनमेंट देता हूं वही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे. ओके, तो ये लास्ट ईयर का असाइनमेंट है, इसका इस ईयर भी थोड़ा सा चेंज करेंगे असाइनमेंट में, बट मोस्टली कंसेप्ट सेम होंगे, सिर्फ अंदर के नोटेशन बदल जाएंगे. ओके, इज दिस क्लियर नाउ? सेट रोस्टर फॉर्म Yes, we sir. have to include in the set of braces and write all the element of set without repetition. Okay, so let me erase all this notation, annotations delete करते हैं, अपनी बुक पे तरफ जाते हैं. Now you answer me this first one. A part answer करो क्या है? A is equal to 1 2 3, B is equal to 3 1 2, C is equal to 1 1 2 3 3 3. Can I say A, B and C all three are equal set? यस सर, रिपीट हुआ है क्योंकि था सी वाले में पूरा. So I can write this as A, sorry, A, B and C are equal sets. मतलब उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, right? So this completes the answer for A part. Second, what I can say about second is 0 in the bracket is equal to 0. Yes or no? No, sir. One रहेगा. No, because what is left hand side? Left hand side is a set and right hand side is a element. Understood the difference? Left hand side is a set containing element 0 and right hand side is just an element 0. So they are not equal. Okay, they are not equal. So left hand side is set, right hand side is just an element, so therefore they are not equal. What about the C part? कितने elements हैं? 2. There are 2 elements. One is not equal to bracket 1. This is element 1. This is set containing 1. So they are 2 different elements. One एक element है और second element जो है वो set containing 1 है. What about the third last part? Un is equal to n comma minus n. Find u1, u2, u0. तो u1 कैसे लिखोगे आप? n के जगह पे 1 लिखोगे, 1 कॉमा माइनस 1. u2 कैसे लिखोगे आप? n के जगह पे 2 रखोगे तो क्या मिलेगा? 2 कॉमा माइनस 2. व्हाट इज u0? आप बोलो. 0. 0 कॉमा माइनस 0. माइनस तो 0 का कोई सिंबल नहीं होता. नहीं 0 पे माइनस नहीं रहेगा. तो ओनली सिंगलटन 0. माइनस 0 इज सेम एज 0. तो देयरफॉर u0 इज सिंगलटन 0. बाकी सब सेट में जो भी इंटीजर रहेगा, बाकी सब सेट में 2 एलिमेंट्स रहेंगे, सिर्फ 0 के लिए एक ही एलिमेंट रहेगा. ओके, so this is your Saint-Rooster notation. So let us move further. Answer check करते हैं. So these are exactly having same 3 elements, therefore they are same different ways to represent the same set. So we have written equal set, वो भी correct है. Okay, so ये हो गया. Then next आपका ये जो symbols रहते हैं, so generally we use the symbol, इंग्लिश का जो लेटर आर रहता है,
इंग्लिश का जो लेटर कैपिटल आर रहता है वो हम लोग जनरली रिलेशंस के लिए रिजर्व रखते हैं. एंड व्हेन वी डिनोट द सेट वी राइट लाइक दिस. तो यहाँ पे एक और ऐसे कुछ तो करते हैं. टू डिनोट इट इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स. ओके, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स हम कैसे डिनोट करते हैं? आर के यहाँ पे आगे एक और ये देखते हैं. फिर अगर n के आगे ऐसे कुछ दिया हमने तो दिस इज द सेट ऑफ natural numbers. Then we denote it z by the set of integer. Real number, set of natural numbers, then set of integers. We denote it by q. q को क्या डिनोट करते हैं? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. तो ये कैसे होता है? लेट अस सी हाउ दिस सिस्टम इज डेवलप्ड. so I will explain to you. सबसे पहले जब हम लोग कैलकुलेशन में करते हैं तो वेरी फर्स्ट थिंग इन द कैलकुलेशन इज द नीड ऑफ काउंटिंग. तो नीड ऑफ काउंटिंग में अगर मैं सपोज नेचुरल नंबर पहले लिखता हूँ. सपोज हम लोग का जो मैथमेटिक्स डेवलप हुआ नंबर्स, वो कैसे डेवलप हुआ कि अर्लियर इन द सिस्टम वी डोंट हैव नंबर्स. सो व्हाट सपोज व्हेन दिस फार्मिंग गॉट डेवलप, जैसे ही खेती करना इंसान ने शुरू कर दिया तो उसके साथ साथ पालतू जानवर रखना भी शुरू कर दिया. तो अगर सपोज कोई किसी के पास कुछ होगा कि उसके पास कुछ खेती करने के लिए गाय या बैल है, तो वो क्या करेगा? उसको गिनती करेगा. तो पहले तो गिनती के लिए नंबर्स वगैरह कुछ नहीं था. तो उन्होंने कैसे गिनती करना शुरू किया? कोई भी ऐसे पेड़ वगैरह लेते थे, पेड़ के ऊपर अगर सपोज उसके पास एक गाय है तो वो एक ऐसे क्या बोलते हैं लाइन मारेगा. अगर 2 है तो 2 मारेगा, 3 है तो 3 मारेगा. सो दिस इज हाउ द रोमन सिस्टम. आपने कभी देखा है कि रोमन सिस्टम में 1 कैसे लिखते हैं, 2 कैसे लिखते हैं? वो इस लाइन से आता है कि वहां से उन्होंने शुरुआत किया. तो दिस इज वेरी नेचुरल टू अस, देयरफॉर वी कॉल दिस एज नेचुरल. वेयर वी स्टार्ट इन, जैसे जैसे डेवलप हुआ वी कॉल्ड इट फॉर natural number. So set of natural number is denoted by n and it is written as 1 2 3 4 so on. Okay, so ये natural number में क्या कमी थी जो हमको और उसको एक्सटेंड करना पड़ा? सबसे पहली कमी ये थी कि अगर किसी के पास एक भी गाय या बैल नहीं है तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा? देयर इज नथिंग टू रिप्रेजेंट, दैट पर्सन डजंट हैव एनीथिंग. तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है. तो इसीलिए हम लोग को क्या इंक्लूड करना पड़ा? जीरो इंक्लूड करना पड़ा. तो जीरो जब मैं इंक्लूड करता हूं तो मेरा जो नंबर सिस्टम बोलते हैं उसको बोलते हैं W, और इट इज कॉल्ड एज सेट ऑफ होल नंबर्स. सेट ऑफ होल नंबर्स हमने डेवलप कर दिया. अभी क्या प्रॉब्लम आएगा? आगे क्यों लेके जाना पड़ा इसको, एक्सटेंड क्यों करना पड़ा और आगे? नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं. निगेटिव नंबर की जरूरत क्यों पड़ी अपने को? उधार लिए. अरे वाह, गुड. उधार लिया तो मतलब अगर सपोज क्या होता था कि अगर सपोज कि किसी किसान के पास नहीं है, उसके पास गाय उतने बैल नहीं है, तो वो क्या करेगा? किसी और से उधार लेगा. मतलब वो दूसरे से उधार लेगा तो उसको लौटाना भी पड़ेगा. अगर सपोज उसने उधार लिया, 3 गाय उधार लिया और उधार लेने के बाद एक गाय सपोज मर गई तो उसके पास 2 ही बचे, बट उसको रिटर्न क्या करना है? 3 रिटर्न करना है. तो 2 - 3 विल बी -1. तो ऐसे जो निगेटिव साइड है वो धीरे धीरे डेवलप होने लगा, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन के लिए हमको कुछ ना कुछ चाहिए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैंने उससे 3 लिया
बट बीच में किसी कारण के वजह से वो एक मर गई, तो क्या करेंगे? तो इसीलिए वो जो निगेटिव नंबर है वो डेवलप हुआ. सो व्हाट वी कैन राइट इट एज 0. एवरी नंबर का हमने निगेटिव नंबर लेना शुरू किया, प्लस और माइनस 1, प्लस और माइनस 2, प्लस और माइनस 3 एंड सो ऑन. ओके, तो इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स. ओके, अभी क्या प्रॉब्लम हो गया? अभी ये सेट को गौर से देखो, इसमें कोई भी दो एलिमेंट्स को आप ऐड करोगे आपको इंटीजर ही मिलेगा, कोई दो एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करो आपको क्या मिलेगा? इंटीजर ही मिलेगा. किसी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? इंटीजर ही मिलेगा. बट अगर आपको मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस करना है, मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है? डिवीजन. कैन आई से कि मैं कोई भी दो एलिमेंट लूं सेट ऑफ इंटीजर में, ऑब्वियसली वो नॉन जीरो होने चाहिए, और मैं उनको डिवाइड करूं तो मुझे इंटीजर ही मिलेगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं. फॉर एग्जाम्पल क्या मुझे मिल सकता है? 1/2 which is not belongs to the set of integer. Therefore we need one more system to extend of this particular system. So this new system we write in the set builder form. We write it is as p upon q. P comma q belongs to the set of integers and q not equal to 0. Anything divided by 0 is not possible. Therefore we represent a set p upon q. p and q किस में होने चाहिए? इंटीजर्स में होने चाहिए, और q नॉट इक्वल टू 0. ओके, तो ऐसे फॉर्म में जब लिखते हैं तो इसको बोलेंगे हम लोग सेट ऑफ रैशनल नंबर. फिर भी अपना सिस्टम कंप्लीट हुआ क्या? नहीं सर, नहीं कंप्लीट हुआ, क्योंकि when I plot a rational number on a number line, say 0, 1, 2, 3, there are some holes in the number line जो रैशनल नंबर से फिल नहीं किए जा सकते. फॉर एग्जाम्पल नंबर पाई, वी कैन नॉट से दैट पाई बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रैशनल नंबर, क्योंकि पाई का जो डिजिटल एक्सपांशन है वो 3.1415 वो आगे ही चला जाता है, उसमें कोई पैटर्न भी नहीं है. So we cannot express this number like pi e square root of 2 as a part of rational number. We cannot represent it in the form of p by q, where p and q are integer. But we can definitely plot on number line. Root 2 को कैसे plot करेंगे आप number line पे? How you will plot number line पे root 2? मैं एक आपको आइडिया देता हूं. आपने कंपास यूज किया है ना? ये 0 से 1 है. ओके, मैं यहाँ पे भी 0 से 1 1 सेंटीमीटर यहाँ पे भी लूंगा. व्हाट इज दिस डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर? हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम. व्हाट डज इट से? बेस एंड हाइट. नहीं, पाइथागोरस थ्योरम क्या से बोलता है? a square plus b square is equal to c square. What is a over here? 1. b is over here 1. So it is c का वैल्यू क्या होगा? √2 होगा, राइट? एंड देन व्हाट आई कैन डू, आई कैन पुट कंपास का एक जो सिरा है वो यहाँ पे 0 पे रख दूंगा, दूसरा सिरा जो है यहाँ पे रख दूंगा और एक सर्कल ड्रॉ करूंगा. तो मुझे यहाँ पे जो डिस्टेंस मिलेगा वो क्या होगा? 1.41 के आसपास का डिस्टेंस मिलेगा जो है √2. ओके, so I can exactly plot √2 on the number line. Understood this process? मैं कैसे √2 को प्लॉट करता हूँ नंबर लाइन पे? यस सर. Okay. तो ये √2 नंबर लाइन पे तो प्लॉट होता है, बट वो रैशनल नहीं है. तो ऐसे सब नंबर्स जो होते हैं जो नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो बट वो रैशनल के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो,
उसको हम बोलते हैं इररेशनल नंबर। Sir, ओके, हाँ बोलो। if we have to write root 2, we have to use Pythagoras theorem. हाँ, पाइथागोरस थ्योरम से ही वो आपका रूट 2 का वैल्यू आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो। Only ओके, one way. नहीं, देयर आर सर मेनी सेम वेज। पाई का भी ऐसे ही होगा ना? पाई के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक क्या बोलते हैं उसको, एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा रेडियस 1 का। रेडियस 1 का अगर मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं तो उसका सर्कम्फरेंस सॉरी हाँ, उसका हाफ सर्कल अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो उसका जो ये आता है वो कितना आता है, पाई इंटू आर। तो आर अगर 1 है तो वैल्यू क्या होगा, पाई होगा। मतलब मैं अभी बताता हूँ आपको, एक मिनट मुझे इरेज करने दो ये सब जो नहीं चाहिए। लेट मी सिलेक्ट दिस, डिलीट। तो जो मैं बोल रहा था वो ऐसे कि अगर मैं 1 रेडियस का हाफ सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ओके, तो दिस इज माय सेंटर ओ, दिस इज रेडियस 1, तो इसका लेंथ क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन पाई आर इंटू आर, राइट, नहीं सॉरी, थीटा अपॉन 2 पाई इंटू आर। तो थीटा का वैल्यू पाई है, मैं कहाँ कंफ्यूज हो गया, एक मिनट, को एडमिट करा दूं। सपोज आई वांट टू प्लॉट पाई, तो ये जो सर्कम्फरेंस है, हाफ सर्कल का जो सर्कम्फरेंस आता है, इसका जो वैल्यू है वो होता है पाई, क्योंकि पूरे सर्कल पे पेरीमीटर कितना कवर करेगा, 2 पाई, 2 पाई इंटू आर, बट आर इज 1, सो यू कैन जस्ट राइट 2 पाई। बट अगर मैं सिर्फ हाफ सर्कल लूंगा तो कितना कवर करेगा, डिस्टेंस पाई। तो ऐसे ये जो हाफ सर्कल को मैं अगर सीधा करूंगा तो मुझे कितना डिस्टेंस मिलेगा, 0 से लेके पाई तक डिस्टेंस मिलेगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली 3.14, जो आपका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है वो। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन प्लॉट द पाई ऑन द नंबर लाइन। मतलब नंबर लाइन पे कोई भी चीज प्लॉट करने के लिए क्या करना चाहिए आपको, उसका 0 से डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करने का तरीका क्या होता है, जस्ट एकदम सिंपल सा तरीका होता है। वो सिंपल का सा तरीका ये होता है कि आपको, इस सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, हाँ हो गया, 0 से उसका डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो 0 से 1 डिस्टेंस में राइट हैंड साइड पे लूंगा तो मुझे 1 प्लॉट करने मिलेगा। 0 से मैं 1 डिस्टेंस निगेटिव साइड पे लूंगा तो मुझे -1 प्लॉट करने मिलेगा। 0 से मैं 2 डिस्टेंस लूंगा तो I will plot right side में +2, left side में -2. So I can, if I measure the distance, I can plot that number on the number line, right? So that is the meaning of your number line. Understood this? Yes, sir. तो Yes, नंबर लाइन पे हर एक नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। आर इज अ इन जनरल कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर प्लस irrational number. So R is considered to be set of all real number. That means any number which can be plotted on the number line is denoted by R. But again, this R system is not complete. We will again extend it to C. Why it is so? कौन सा ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी अपने को? देखो, सेट ऑफ रियल नंबर में हम एक और ऑपरेशन करते हैं, वो है स्क्वायर का ऑपरेशन। आई कैन फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर। यू गिव मी नंबर से 5, आई कैन से दैट इज स्क्वायर इज 25. yes or no? yes, कैन आई स्क्वायर एनी रियल नंबर? Yes. उसी के साथ मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर मिल सकता है मुझे। व्हाट अबाउट द रिवर्स प्रोसेस? स्क्वायर का रिवर्स प्रोसेस क्या है? स्क्वायर रूट।
square root. Can I obtain square root for every real number? No. 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 I can Negative obtain the numbers square cannot. root only for the positive values of real line. 0 से आगे जो भी numbers है 1 2 3 4 इस part का हम लोग square root निकाल सकते हैं, but negative side का square root हमको, for example square root of -1, we cannot write the square root of -1 क्योंकि किसी का square real number का square मिलता ही नहीं है कि -1. So C is defined to be a number in the form of x plus iy, where x and y are real numbers and I is equal to square root of -1. To include the square root of negative number, we have extended our system to the set of complex numbers. So this is how the number system developed. From natural number, we come to whole numbers. Then we include the negative number to find z, integers. Then, Sir, हाँ बोलो. sir, could you please pardon it? Complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर ना, तो कॉम्प्लेक्स Yes. नंबर के इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर हम जनरली इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है, जैसे हमने देखा कि कोई भी रियल नंबर अगर वो पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा. अगर वो निगेटिव sir. है तो हम लोग -r का स्क्वायर करेंगे तो -r का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होगा. Positive. अगर 0 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 0 मिलेगा. तो इन जनरल आपको स्क्वायर जो है वो क्या मिलता है, नॉन निगेटिव मिलता है, राइट. तो अगर मैं Yes. निगेटिव का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव आता ही नहीं है. तो फॉर एग्जांपल मुझे 25 का रूट निकालना है तो मैं किसका स्क्वायर 25 है वो देखूंगा. तो किसी का स्क्वायर अगर निगेटिव आता ही नहीं है तो मुझे निगेटिव मिलेगा ही नहीं. तो इसीलिए वो जो निगेटिव स्क्वायर रूट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर. ओके. एंड व्हेन यू Understood. incorporate imaginary number with the real number, we will get the complex number. Incorporate number with imaginary number. हाँ, रियल नंबर विद द इमेजिनरी नंबर, दोनों का मिला के हमको क्या मिलेगा. So for example, when I write x plus iy, I will say x is a real number, x is a real part of this complex number, and iy is called as a imaginary part of the complex number. So दोनों को मिला के मुझे क्या मिलेगा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को मिला के मुझे क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा. जैसे हम जो बोलते हैं ना रियल नंबर, इट इज रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, मतलब रैशनल नंबर भी है इरेशनल भी नंबर है, तो हमको सेम कॉम्प्लेक्स में मिलता है. इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर का एवरी जो हिस्सा है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है. एक हिस्सा को बोलते हैं रियल पार्ट, दूसरे हिस्से को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट. जो आई के साथ मल्टीप्लाई होता है उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द Imaginary. कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके. So this is the little bit introduction to the your number system or number sets. तो यहाँ पे तो आपको R, Z and Q ही दिया है, but in the next semester or next to next semester you will require C as well. Then there are some notation which I wanted to introduce. अगर सेट को मैं ऐसे लिखता हूँ R plus, what does this mean? It is collection of all x belongs to R such that x is greater than 0, strictly greater than 0. अगर मैं z plus लिखता हूं तो क्या होगा, it is collection of all x belongs to z such that x is strictly greater than 0. So when I write plus sign on the set, that means we have to consider only positive part of that set. So R plus लिखा तो only positive real numbers, Z plus लिखा तो all will positive integers. अगर मैं Q plus लिखता हूं तो all the positive rational. Similarly हम R के ऊपर माइनस साइन दिया तो क्या होगा, all the negative numbers are Negative considered. real numbers. ओके. अगर मुझे नॉन नेगेटिव कंसीडर करना है तो 0 को मैं
ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन दूंगा। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने z नॉन निगेटिव करके कुछ तो लिखा है, देखो। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा z नॉन निगेटिव, that means I want a set of all the numbers in the set of integer such that x is greater than or equal to 0. What is the difference between z non-negative and z plus? z plus और z non-negative में फर्क क्या है? यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है और यहाँ पे हम 0 को इंक्लूड कर रहे हैं और यहाँ पे 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे। तो डिफरेंस बिटवीन z नॉन निगेटिव एंड z प्लस क्या होगा? एनीवन? Anyone? Okay, I will explain over here. Next So page. 0 will also be counted. Okay. यहाँ पे अच्छे से लिख सकता हूँ मैं प्लेन पे। z नॉन नेगेटिव को होल नंबर्स भी बोल सकते हैं ना? हाँ बोल सकते हैं, बराबर बोला। I can write the z set प्लस like को नेचुरल नंबर्स। yes. Z non-negative is this set 0, 1, 2, 3 up to this, and Z plus is the set 1 dot dot. तो क्या डिफरेंस है Z नॉन निगेटिव और Z प्लस में? एक में 0 इंक्लूड है, एक में 0 नहीं है, होल नंबर और नेचुरल नंबर। ओके। R plus and R non-negative. दूसरे कलर का पेन लेते हैं। क्या आवाज चालू है? म्यूट योरसेल्फ। ओके। तो R नॉन निगेटिव को मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो मैं 0 के ऊपर ये डॉट जो बनाऊंगा वो फिल डॉट बनाऊंगा, फिल डॉट एंड कवर ऑल दिस लाइन। तो ये जो सब लाइन है दिस कंप्लीट्स द R नॉन निगेटिव जिसमें 0 इंक्लूड है। R प्लस में 0 इंक्लूड नहीं है, तो 0 के ऊपर मैं क्या बनाऊंगा? हॉलो सर्कल बनाऊंगा। हॉलो सर्कल का मतलब है वो नंबर इंक्लूड नहीं है बट उसके आगे के सभी नंबर्स हमको इंक्लूड करने हैं। तो अंडरस्टूड द प्रोसेस। व्हेन in the number line I want to include the boundary point, I will make it filled circle, मतलब वो भर दूंगा, वो गोला जो है वो भर दूंगा और फिर आगे के नंबर्स रिप्रेजेंट करूंगा। अगर मुझे वो हॉलो लाइन दिखाना है तो मैं क्या करूंगा? वो गोले को भरूंगा नहीं, सिर्फ उसको प्लेन सर्कल मतलब ऐसे सर्कल ड्रॉ करूंगा और आगे उसको ये करूंगा। और जब मुझे वो इंक्लूड करना है तो मैं क्या करूंगा? उसको भर दूंगा और फिर आगे के नंबर्स इंक्लूड करूंगा। सो डिफरेंस बिटवीन दिस टू अंडरस्टूड। आर नॉन निगेटिव इट इज नंबर लाइन पे 0 के राइट साइड के सभी नंबर प्लस 0 एंड आर प्लस 0 के सिर्फ राइट साइड के नंबर नॉट इंक्लूडिंग 0। ओके, तो डिफरेंस पता चला ये दोनों में, नॉन निगेटिव और पॉजिटिव में फर्क क्या है? अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, Yes. let's go on the further. So this is the number line जो हमने एक्सप्लेन किया कि 0 ऑलवेज मिडल पॉइंट कॉल्ड एज ओरिजिन, एंड हम लोग नंबर प्लॉट कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस देख रहे हैं 1/3 मतलब 0 से राइट हैंड साइड पे 1/3 डिस्टेंस पे वो पॉइंट होगा। अगर मुझे -0.8 प्लॉट करना है तो 0.8 डिस्टेंस पे लेफ्ट हैंड साइड पे प्लॉट करूंगा। सो हमेशा ये जो सेंटर पॉइंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज ओरिजिन। ओके,
द रियल नंबर लाइन इज कॉल्ड एज अ कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस क्यों बोलते हैं? कि उसमें कोई भी होल नहीं है, बिकॉज इट इज इमेजिन टू हैव नो होल्स. मतलब हर एक नंबर के बाद दूसरा नंबर होगा ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि उसमें कोई नंबर नहीं होगा. ठीक है. देन सेट ऑफ इंटीजर इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट. तो जो मैंने पहले ही बोला कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन सा सब्जेक्ट है? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मतलब देयर आर सम गैप्स इन बिटवीन. जैसे मैं इंटीजर बोलता हूँ, इंटीजर के बीच में गैप्स है 1 2 3 4. देयर इज नो इंटीजर बिटवीन 1 and 2. देयर इज नो इंटीजर बिटवीन 2 and 3. तो ये जो नंबर्स है उसके बीच में गैप है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? जो इंटीजर्स है उसको क्या बोलेंगे? सेट ऑफ इंटीजर इज कॉल्ड डिस्क्रीट सेट. whereas set of real numbers there is no gap. 1 and 2 के बीच में सभी नंबर्स जो है वो रियल नंबर्स ही है, तो इसमें कोई गैप नहीं, इसलिए सेट ऑफ रियल नंबर को हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस. Continuous. Okay, so this is a difference between continuous and discrete. So this is why the name discrete mathematics come from distinction between continuous and discrete mathematical object. Okay, ये तो आपने सीखा होगा how to read this notation. When I write this particular thing, bracket x belongs to x such that p of x, how to read it? The set of all x belongs to S such that p of x. Okay, this particular notation is read like this: the set of all x belongs to S such that p of x. ऐसे तो abstract में कुछ समझ में नहीं आएगा. So let us see how to write this. Set of all x belongs to Z such that x is greater than or equal to 1. How do you read this? The set of all, मतलब फर्स्ट ब्रेस के आगे आप क्या पढ़ोगे? The set of all x belongs to Z such that, ये जो मिडल लाइन है उसको क्या बोलेंगे? Such that p of x, यहाँ पे p of x क्या है? x greater than or equal to 1. मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? It is a property that all the numbers are greater than or equal to 1. So कोई प्रॉपर्टी उस सेट को स्पेसिफाई करती है. तो ये जो नोटेशन है उसको क्या बोलेंगे? सेट बिल्डर नोटेशन. तो ये जो सेट है वो किसके फॉर्म में है? दिस सेट इज इन द सेट बिल्डर फॉर्म. कैन यू राइट द सेम सेट इन द सेट रोस्टर फॉर्म? तो कोई प्रॉपर्टी दिया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म. अगर उसको सेट रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे? All natural numbers. I will write the set in the pair of braces specifying all the elements in the set. So set roster क्या है? I will write all the elements in the set in the pair of braces and write all the elements without repetition. This is called as set roster form, or someone have said it is same as set of natural number. So understood these two forms, set builder notation and set roster notation. Okay. Yes, sir. Okay, so let us move further. हाँ नाकिब. Okay, consider this particular set. फर्स्ट सेट देखो कैसे उन्होंने रिप्रेजेंट किया है. What is the, can you anyone read this set? कैसे रीड करोगे आप? X belongs to R such that. मैंने क्या बोला? पहले ब्रेस के आगे आपको क्या बोलना है? The set of of all x belongs to R such that x is greater than -2 and less than 5. Correct.
the set of all x belongs to R such that x is greater than -2 and less than 5. ओके, तो यहाँ पे क्या है, -2 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है यहाँ पे, तो -2 इंक्लूड नहीं होगा, तो उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे होलो सर्कल बना दिया। कैन यू सी दिस होलो सर्कल? वो फिल नहीं किया हुआ है, एंड यहाँ पे भी होलो सर्कल बनाया हुआ है जो फिल नहीं किया है। अगर फिल किया है तो मतलब क्या है, अगर मैं ऐसे लिखूंगा ये सेट को, यहाँ पे अगर ये क्यू बड़ा बन जाता है यार, फिल करेगा तो वो भी इंक्लूड होएगा मतलब। हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि अगर यहाँ पे लेस देन और अगर यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू साइन होता तो मैं ऐसे ड्रॉ करता इसको, -2 पे होलो सर्कल बनाता और जो 5 है वहां पे भरा हुआ सर्कल बनाता, और फिर इनके दोनों के बीच में जो भी नंबर्स है वो इंक्लूड कर देता। सो दैट इज द सेट इफ आई हैव यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू साइन, देन आई विल राइट दिस। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, -2, 5। अगर इंक्लूड करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करो, अगर इंक्लूड नहीं करना है तो राउंड ब्रैकेट यूज करो। सो ये जो सेट है which I can write in the interval form as -2, 5. Since -2 को भी इंक्लूड नहीं करना है, राउंड ब्रैकेट, 5 को इंक्लूड नहीं करना है, राउंड ब्रैकेट, अगर इंक्लूड करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, व्हाट डज सेट बी? बी सेट कौन सा होगा? एनीवन? x belongs to set of integers. Anyone? What is B set? सेम ही आएगा ना सर? नहीं, x कहाँ पे है यहाँ पे? x in the set of integers. Can I write, यहाँ पे मैं फर्स्ट सेट में मैं आपको सवाल पूछता हूँ, can I write 0.5 in the first set? Can I say 0.5 belongs to the first set? Yes. Can I say 0.5 belongs to the second set? No. Why? Because it is not an integer. तो यहाँ पे सिर्फ इंटीजर इंक्लूड करना है, -2 इज इंटीजर बट स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो मैं -1 से स्टार्ट करूंगा, देन 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा, बट इन दोनों के बीच के नंबर्स यहाँ पे नहीं आएंगे। whereas in the first set all the numbers between -2 and -2 and +5 will belongs to this particular set because एलिमेंट्स कहाँ से ले जा रहे? रियल नंबर से लिए जा रहे। सेकेंड सेट में एलिमेंट्स कहाँ से लिए जा रहे? इंटीजर से लिए जा रहे, इसलिए सेकेंड सेट कैसे आएगा? -1 से 4 तक आएगा। थर्ड सेट क्या आएगा? एंड वी विल स्टॉप आफ्टर थर्ड। 1 2 3 4 1 2 3 4, क्योंकि एलिमेंट्स कहाँ से लिए जा रहे? एलिमेंट्स z+ से लिए जा रहे, तो z+ से लिए जा रहे, इसलिए हम लोग सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करेंगे, इसीलिए -1 and 0 is not part of this particular set. Okay, understood? Yes, sir. Okay, then we will continue in the next session. Okay, मैंने ये बुक आपको सेंड किया है, आप प्लीज इसको रेफर करो। Okay. So bye everyone. Join the next lecture. सर रिकॉर्डिंग? हाँ, रिकॉर्डिंग हो जाएगा। रिकॉर्डिंग में आपको वही मैंने जो फर्स्ट डे आपको सेंड किया था वही प्लेलिस्ट में मैं आपकी रिकॉर्डिंग्स डालते रहूंगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा। अभी 2 लेक्चर्स हुए हैं तो दोनों लेक्चर का रिकॉर्डिंग डाल दिया है मैंने, बट आगे ऐसा हो सकता है कि मैं वीक के एंड में डालूंगा, मतलब 3-4 लेक्चर जो वीक में होते हैं वो पूरे 3-4 लेक्चर एंड में ही डालूंगा। हाँ, वो किया क्या पहला लेक्चर? ओके।
So you can Sir, subscribe to that particular channel. तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा. हाँ. sir, any chances regarding our